Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am covering the next topic of your chapter 1, that is resources and development. And today's my topic is land resources. In my previous video, I discussed with you about the resources only. As you all know that this chapter is divided into two parts. One is about the resources, and second part is land resource, in which we learn about the all facts of land as a resource और soil as a resource. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज लैंड रिसोर्सेज. So under the land resources, we learn what is land resource, then what is the land use pattern of our country. After we will learn that land degradation, what is land degradation and how we can conserve the land. Okay, so let's start this chapter, the topic today. Land resource, very important resource, as we all live on land and without land, अगर हम ये बात कहें कि अगर लैंड नहीं होती तो लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, एंड लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल देन द ऑल थिंग्स आर यूजलेस. रिसोर्सेज ही नहीं यूजलेस होते, तो लैंड एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. We are performing all the economic and all type of activities on the land only, so it is very much important. It is a essential natural resource for human being. Okay, or we can say, देखिए, it is written here that land as a resource is the having the utmost importance, natural resource of utmost importance. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities. All these are supported by because of land use, land resources. Okay, so let us come on our country. India has a land under a variety of relief features. हमारे पास बहुत सारे फीचर्स में लैंड है. माउंटेन्स आर हेयर, प्लेट्यूज, प्लेन्स, आइलैंड्स, ऑल टाइप ऑफ लैंड्स वी हैव. Now here we have a graph, pie chart, that shows that how much percentage of land, plains and plateaus we have. Here we have 30% mountains, 43% plains and 27% plateaus in our country. It is our relief pattern. ये हमारा relief pattern है. Okay, it possesses rich reserves of minerals, fossil fuels and forest. और इसके अलावा हमारी लैंड में हमारे पास लार्ज स्केल में मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट जो हैं मिलते हैं. ठीक है, सो दिस इज द लैंड रिसोर्स ऑफ आवर कंट्री. नाउ वी विल लर्न द लैंड यूटिलाइजेशन. Land use, that for what purposes we are using the land. As we all know that we are using the land for various purposes, for performing the various human activities, like for cultivating the land, for making roads, for also for human settlements. ठीक है, तो हम लैंड को वेरियस यूजेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए वी आर यूजिंग द लैंड, एंड ऑल दैट थिंग्स आर land use of our country, or we can say that is land use pattern of any area. Under this we have to learn that in an area how much land is used for the various activities. किस एक्टिविटी के लिए कितनी लैंड यूज की गई है, दैट इज कॉल्ड लैंड यूज पैटर्न. ओके, सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड यूटिलाइजेशन को लर्न करेंगे. वी आर यूजिंग द लैंड फॉर फॉलोइंग पर्पसेस: for forest, for barren and wasteland, land not available for cultivation. वो लैंड जो कल्टिवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है उसको हम वेस्ट लैंड या बैरन लैंड कहते हैं, या फिर नॉन एग्रीकल्चर लैंड भी कहते हैं. जैसे बिल्डिंग्स के लिए, रोड्स के लिए, फैक्ट्रीज के लिए हमने जो लैंड बनाई है वो हमारी नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए लैंड है. अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड्स, परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड. परमानेंट पास्चर जहाँ ऑलरेडी परमानेंटली हम एनिमल्स की ग्रेजिंग करवाते हैं. ठीक है, लैंड अंडर मिसिलेनियस ट्रीज, क्रॉप्स, ग्रूव्स, कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर एरियर्स. फैलो लैंड्स, करंट फैलो 1 or less than 1 agriculture year.
Other than current fallow, we have uncultivated for the past 1 to 5 agriculture years. Okay, so this is the various uses of land. Net sown area, very important. fallow land आपको पता होनी चाहिए कौन सी है. barren land जो किसी भी काम नहीं आ रही है, वेस्ट है, ठीक है. और fallow land में कौन सी लैंड जिसमें हमने कल्टीवेशन पिछले 1 ईयर से नहीं किया, वो तो है करंट फैलो. और अदर देन करंट जिसमें पिछले 1 से 5 सालों के बीच में हमने कल्टीवेशन नहीं की. नेट सोन एरिया क्या है? जो एग्रीकल्चर ईयर में नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, जहाँ पर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं. नाउ दैट इज नेट सोन एरिया. मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, एक से ज़्यादा बार हम जिसमें एग्रीकल्चर की 1 साल के बीच में, ठीक है, वो हमारा नेट सोन एरिया है. नाउ कम ऑन द लैंड यूज पैटर्न इन कंट्री. इन इंडिया, इंडिया में हम वेरियस पर्पजेस के लिए कितनी लैंड यूज कर रहे हैं, दैट इज लैंड यूज पैटर्न. एंड इट इज ऑल्सो डिफर इन द डिफरेंट कंट्रीज. लैंड यूज पैटर्न हर कंट्री का अलग होगा. कहीं पर कल्टिवेटेड लैंड ज़्यादा होगी, कहीं पर एग्रीकल्चर लैंड कम होगी, तो फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है. वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, एरिया टू एरिया. नाउ द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स. देखो लैंड यूज पैटर्न किन फैक्टर से अफेक्टेड हो रहा है. लैंड यूज पैटर्न जो है वो 2 फैक्टर से अफेक्टेड हो रहा है. एक तो है ह्यूमन फैक्टर, ठीक है, और दूसरा क्या है, दैट इज सेकेंड वन इज दैट इज फिजिकल फैक्टर. 2 फैक्टर है, फिजिकल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर. फिजिकल फैक्टर टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, ये क्या है फिजिकल फैक्टर, जिस पर डिपेंड कर रहा है कि लैंड यूज कैसी है. देखो माउंटेनियस एरिया में टोपोग्राफी माउंटेनियस है तो वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड कम होगी, ठीक है. प्लेन एरिया में एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा होगी, या फर्टाइल सॉइल में एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा होगी. तो डिपेंड कर रहा है किस पर, इन फिजिकल फैक्टर्स पर. और कुछ चीज़ें ह्यूमन फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती हैं. पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा हो सकता है. पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ह्यूमन सेटलमेंट्स ज़्यादा होंगी, एग्रीकल्चर लैंड कम होगी. तो डिपेंड कर रहा है, ठीक है. टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर, ट्रेडिशन एक्सेट्रा, ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट द लैंड यूज पैटर्न ऑफ ए एरिया, ठीक है. तो यहाँ पर लैंड यूज पैटर्न को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन का आंसर है. नाउ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ ए लैंड इज 3.20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इन आवर कंट्री, जिसमें से 93% का तो हमें डाटा पता है, बट 7% ऐसा है जिसका हमें डाटा नहीं पता इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम. एग्जैक्टली ये कुछ माउंटेनियस रीजन्स हैं तो हमें इनका एग्जैक्टली डाटा नहीं पता कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हम लैंड वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, कितनी लैंड कितने एरिया में किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है. इसमें आसाम है, जम्मू एंड कश्मीर के कुछ एरियाज़, पाकिस्तान और चाइना द्वारा ऑक्यूपाइड इंडिया के जो पोर्शन है दैट इज ओके. चलिए लेट अस कम ऑन द लैंड. इन दिस पाई चार्ट वी विल लर्न अबाउट द लैंड यूज पैटर्न ऑफ आवर कंट्री. फॉरेस्ट एरिया कितना है हमारे कंट्री में, दैट इज 18.11%. बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड कितनी है, 12%. देन एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस कितना है, दैट इज 4.95%. देन परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड कितनी है, दैट इज 4.71%. एरिया अंडर मिसलेनियस ट्रीज, क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, वो कितना है, दैट इज 3.50%. तो ये आपके पास वेरियस है अकॉर्डिंग टू द ईयर्स. 2 ईयर्स का कंपैरिजन है ये. वन इज 2008 and 9 एंड दिस वन इज 960-61 वाले ईयर्स की कंपैरिजन दिया हुआ है कि कहाँ पर. देखो यहाँ पर फॉरेस्ट में 18.11% है, बट यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया बढ़कर 22.78% हो गया, ठीक है. तो ये एक आपके पास लैंड यूज पैटर्न का एरिया पैटर्न दिया हुआ है. नाउ कम ऑन दिस वन पॉइंट. in our country we are having the various variation in the land use pattern of in our country. वेरिएशन है
In some states we are using the land for at large scale for agriculture, and in some states we are having the land used for forest at large scale. तो डिपेंड कर रहा है वो हमारे फैक्टर्स पर, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल देखिए, नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. 80% of the total area in Punjab and Haryana land, less than 10% in Arunachal Pradesh and Mizoram, Manipur, Andaman Nicobar Island. देखिए, पंजाब और हरियाणा में 80% जो टोटल एरिया है वो एग्रीकल्चरल लैंड है, बट इट इज़ लेस 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, असम, अंडमान निकोबार आइलैंड्स. ठीक है. ऐसे ही फॉरेस्ट एरिया कंट्री में 33% है जोग्राफिकल अकॉर्डिंग, एरियाज के अकॉर्डिंग, बट इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस. ये ज़रूरी माना गया है कि हर कंट्री में कम से कम 33% लैंड पोर्शन जो है वो फॉरेस्ट के अंडर होना चाहिए कंट्री के इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए. ठीक है. बट एग्जैक्टली इट इज़ नॉट इन आवर कंट्री. हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है कि हमारे पास टोटल 33% जो है वो फॉरेस्ट है. नो. अ पार्ट ऑफ लैंड इज टर्म्ड एज अ वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस वेस्ट लैंड इंक्लूड्स रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरिया पुट टू अदर नॉन जोग्राफिकल यूजेस. ठीक है. इसके अलावा हमारे पास वेस्ट लैंड भी है, फॉरेस्ट लैंड भी है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड भी है. ठीक है. फैलो लैंड्स वी आर ऑल्सो हैविंग इन आवर कंट्री. सो दिस इज अबाउट योर लैंड यूज पैटर्न ऑफ द कंट्री. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स. स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट द लैंड व्हाट इज, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल you all know that what is land degradation. लैंड डिग्रेडेशन क्या है? when land degradation means the quality of land become down, that is called land degradation. जब quality of land की क्वालिटी डाउन होती जाती है तो हम उसे लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ सॉइल एरोजन एंड बिकॉज ऑफ मेनी अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़. ठीक है. नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. अगर हम इंडिया में कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन की बात करते हैं तो देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. Large scale soil erosion caused by running water is one reason of land degradation. Second reason is dumping of waste material from mining centers and industrial units. Third, over irrigation is also one of the major cause of land degradation in our country. If I told you that area wise चलें तो over irrigation is more in the states like Punjab, Haryana. Okay, and overgrazing by animals is also one of the cause of land degradation, and it is more in the countries in the states like Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat. Here the overgrazing is the main cause of land degradation, right? Then deforestation, wastewater from industrial units pollute the lands. Yes, when we are throwing directly the wastewater of the industries in the land, then they are degraded the land. Mineral processing like grinding of limestone for cement industry and calculate the soapstone for ceramic industry creates a lot of dust, and this dust is deposited in the neighboring land. देखो, मिनरल प्रोसेसिंग इज ऑल्सो द वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. मिनरल प्रोसेसिंग, व्हाट हैपन ड्यूरिंग द मिनरल प्रोसेसिंग, लाइक एग्जांपल है ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन. जब हम लाइमस्टोन को ग्राइंड कर रहे हैं फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड सोप स्टोन, when what happened, a lot of dust is created and that dust is deposited on the neighboring land, and in this way that limestone make that land portion unfertile. उसको डिग्रेडेड कर देता है, उसकी क्वालिटी को लो कर देता है. ठीक है. तो यहाँ पर मिनरल प्रोसेसिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट
major cause of land degradation, and it is very much common in the states like बिहार, झारखंड, ठीक है. इन स्टेट्स में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन स्टेट में मेजर कॉज है माइनिंग लैंड डिग्रेडेशन का, क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं और माइनिंग एक कॉमन प्रोसेस है यहाँ पर, ठीक है. सो ऑल दीज आर द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन कंजर्व द लैंड, how we can save the land to be degraded. The very first, soil erosion can be prevented by ending deforestation, controlling grazing, encouraging afforestation, and practicing the terrace farming. Except it, we can also conserve the land by preparation of shelter belts on the plants and stabilizing of sand dunes by growing thorny bushes और प्लांट्स की शेल्टर बेड्स लगाकर हम लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं, और वी कैन से सॉइल इरोजन होने से बचा सकते हैं. माइनिंग एक्टिविटीज़ शुड बी कंट्रोल्ड. वी शुड हैव टू बी यूज अ न्यू टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस द वेस्टेज. नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी केमिकली ट्रीटेड टू रिमूव द हार्मफुल substances. Then अर्बन वेस्ट, ऑल्सो प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड बायोमिनरल. हम अर्बन वेस्ट जो करते हैं उसको हम लैंड पर डंप करने की बजाय अगर उनसे बायोगैस और बायोमिनरल प्रोड्यूस कर लें तो वो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, ठीक है. एंड इन दिस वे वी कैन ऑल्सो एबल टू स्टॉप द लैंड डिग्रेडेशन. And the last is over irrigation should be stopped. New method of irrigation we should be followed to stop the land degradation. Okay, so this all is about land degradation. Now today I mainly cover the land use pattern of our country and the land degradation and how we can conserve the land. Okay, the next topic is soil. This is the last topic of your chapter, but today I am not discussing it. I discuss this in the next video. Till then, goodbye. Thank you.